یہاں جب داؤد اپنی گواہی شیئر کر رہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا لفظ کہہ دیا، ہم اس قابل نہیں، ہم خدا کے یا میں خدا کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں مال مالکاں کی مشہوری ساڑھے اسی کی مشہوری ہونی چاہیے جس کا ہم کام کرتے ہیں، ہماری نہیں بلکہ اس کے نام کو چلاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سب کچھ جمع کرواتا ہے۔ یہاں آ کر میں نے یہ 2015 اپنے آگے کیا لکھا ہے، یہ میں نے یہاں آ کر سنا ہے، لیکن 31 دسمبر کی رات کو جب میں عبادت کر رہا تھا تو خداوند مجھ سے مخاطب ہوا تھا کہ یہ سال اردو چرچ کی یورپ کی کلیسیاؤں کا سال ہے، کہ کلیسیائیں جو ہے وہ ترقی کریں گی، اور خداوند مجھ سے بولا اور میں نے وہاں پر لوگوں کو یہ بات کہی کہ خداوند اب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور کل بلکہ جمعے کو جب میں ویلنسیا میں تھا تو میں نے کہا کہ 2014 جو ہے وہ گزر گیا، ہم نے جو کچھ بھی کیا اس سال میں عبادتیں کی، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیں خدا سے ناراضگی تھی اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے 2015 جو ہے وہ شروع ہو چکا، اب خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو بڑھنے چاہیے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، یہ 2015 جو ہے یہ تبدیلی کا سال ہے، اور جب میں یہاں پہنچا تو یہاں پر بھی یہی سن رہا ہوں کہ 2015 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے مسیحوں کے لیے، کہ وہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بیٹے میرے بچے 2015 میں تو کیا چاہتا ہے، 2015 میں تو کیا چاہتا ہے۔ جب وہ اندھے نے سوال کیا تو وہ کہتا ہے مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے، آنکھیں چاہیے۔ آج وہ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ 2015 میں تو کیا چاہتا ہے۔ اب آپ کا جواب ہونا چاہیے، میرا نہیں، میں نے بتا دیا، میں نے اپنا جواب خداوند کو دے دیا ہے، اور میں اس اندھے کی بھی بات کو جانتا ہوں کہ اس کے پاس جس چیز کی کمی تھی وہ کہتا ہے کہ میں بینا ہو جاؤں، میں بینا ہو جاؤں، اور جب وہ کہتا ہے میں بینا ہو جاؤں تو بینا ہونے سے مجھے یاد آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہوا کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو اس درخت کا پھل کھا تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تیری آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی، اور اس کی آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی نیک و بد کی پہچان کے لیے، خدا کی قربت میں جانے کے لیے نہیں بلکہ نیک و بد کی پہچان کے لیے۔ میں کیا چاہتا ہوں، نیک و بد کی پہچان جو ابلیس نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند میرے دل کی آنکھیں روشن کر دے، میرے دل کی آنکھیں روشن کر دے۔ اگر دل روشن ہے اس کا مطلب وہاں نور چمکا ہے، اور نور چمکا ہے تو یسوع کے علاوہ اور کوئی نور نہیں چمکا سکتا، کیونکہ یسوع نور ہے، اور اگر وہ نور ہے تو جتنی بھی گندی آتمائیں ہیں، جتنے بھی بدلو ہیں، جتنے بھی ناپاک قوتیں ہیں، جتنے بھی ناپاک منصوبے ہیں دل کے اندر، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ ہیلے باز ہے، چلاک ہے، ہوشیار ہے، اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے اور لوگوں کو اور دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے اور ہمیں ان کی طرف لے جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، جب خداوند مجھ سے کہتا ہے کہ اے تو کیا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں خداوند میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، تیرا نور مجھ پر چمکے، کیونکہ ہر کامل انعام نوروں کے باپ سے ملتا ہے اور وہ ہے یسوع مسیح۔ یسوع مسیح، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح میری زندگی میں آ، میرے دل کے اندر آ، کیونکہ جہاں سے چلاکیاں اور ہوشیاریاں نکل رہی ہیں وہاں پر تیرا قبضہ ہے۔ یہ 2015 میں یہ کر سکتا ہوں، اور جب میں یہ کروں گا میرا گھرانہ ترقی کرے گا، میرے ارد گرد کے لوگ ترقی کریں گے، میری کلیسیا ترقی کرے گی، میرے خاندان جو پاکستان میں ہے وہ ترقی کرے گا، میرا خاندان جو یورپ کے مختلف ممالک میں رہتا ہے وہ ترقی کرے گا، کیونکہ ایک کے سبب سے ہمیں نجات ملی
تیرا شکر کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. شک میں ماں سے جب پیدا ہوا تھا تو میری آنکھیں تھیں، لیکن یہ آنکھیں کلام کے لیے کھلے، دنیا کی نیکی اور بدی کو دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ کلام کے لیے کھلے. میں کلام کو جاننے والا ہوں، میں لوگوں کی کھو میں کھونے والا نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کلام کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. جو دنیا کے وہ دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں. دنیا کے لوگ دنیا کی فکروں میں ہیں. ایک مسیحی خدا کی بادشاہت کی تلاش میں ہونا چاہیے، اور جو خدا کی بادشاہت کی تلاش کرتا ہے زمینی خوشیاں اس کو فوراً مل جاتی ہیں. آمین. کیونکہ زمینی خوشیوں کے لیے ہم بڑے بےتاب رہتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھ اٹھا رہے ہیں، ابلیس کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں. کتنے راستے؟ دو راستے. آج کا جو کلام ہے اس کا عنوان ہے دو. بڑا سمپل سا عنوان ہے. کیا عنوان ہے آج کے کلام کا؟ دو باتیں، اچھی بات، بری بات. اچھی بات اپنانی ہے یا بری بات اپنانی ہے؟ خدا کی بادشاہت پہ جانا ہے یا چلنا ہے؟ خدا کی بادشاہت پہ جانا ہے یا پھر چلنا؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. اور آج کا کلام بھی ہمیں دو ہی باتیں جو سمجھانا چاہتا ہے. نیک و بد کی پہچان کا درخت جو ہے وہ باغ کے اندر لگا ہوا ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ نہ کھانا، اور ہوا نے لیا، خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلایا. نافرمانی ہوئی، آدم سے نکال دی. آج تک ہم ان باتوں کو برداشت کرتے ہیں. نہ ہوتا، مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طریقے سے ہوتے، لیکن جہاں پر ہوتے وہ جگہ جو ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح نے بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اس کا نسیم ہے، جہاں پر اس کا تخت ہے، وہاں پر ہوتے. لیکن نافرمانی، آج پھر خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک ہے تنگ دروازہ اور ایک ہے چوڑا دروازہ. دنیا جو ہے کس راستے کو اپنا رہی ہے؟ کلام پڑھنے والا کہتا ضرور ہے کہ میں سکڑے راستے کا استعمال جو کروں گا، میں تنگ دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، کشادہ راستہ، کھلا راستہ جس میں کوئی ٹکر نہیں لگتی، جس میں آپ اپنے من کی باتیں، اپنے دل کی باتیں کرتے ہوئے ناچتے کھاتے چلے جا رہے اور چلانے والا جو وہ لیے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گرے گا. ایسا گرے گا، جب ہم گریں گے تو وہ کہے گا میں تو لگی گیا ہوں، میں کچھ نہیں تمہارا کر سکتا. ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو دنیا کی چیزیں دکھاتا ہے، اور جب انسان گر جاتا ہے کہتا ہے میں کیا کرا دے جہاں پہ خدا دے جہاں پہ خدا کے پاس میں ذرا کچھ نہیں کر سکتا. جب اس کی بات مانتے چلے جاتے ہیں تو چلتا جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے. جیسے گرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب تیرا میرا ساتھ ختم، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے ہمیں دور لے گیا، خدا کی محبت سے ہمیں دور لے گیا. وہ راستہ چوڑا تھا اور ہم نے اس کشادہ راستے میں چلنا جو ہے وہ زیادہ آسان سمجھا. آج بھی لوگ اس راستے پر چلنے میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں. آج ایکچولی خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ دوہری شخصیت نہیں. یہاں پر بھی دو کا الفاظ ہے، دوہری شخصیت نہیں. اوپر آئے تو میں کہوں کہ ہاللویا، پریز دی لارڈ جیسس کرائسٹ، اور یہاں سے باہر نکلوں گا چلو جی آؤ کدھر چلتے ہو، کدھر چلتے ہو، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا بولیں گے. میں جیسا ہوں، جیسا خدا چاہتا ہے میری زندگی سے، میرا اٹھنا بیٹھنا، ہم گیت میں بھی کسی کو کہتے ہیں تو جانتا ہے، تو کیا جب ہم خود اس کا اقرار کرتے ہیں تو میرا اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، تو کیا وہاں پر
खुदावन नहीं होता? क्या सिर्फ खुदा गिरजा घर में महदूद है? हमने खुदा को एक जगह पर महदूद कर दिया है, जबकि वो नामहदूद खुदा है। आमीन। वो हर जगह पर है। कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां मैं कहूं कि खुदा नहीं है। गिरजा घर में है, मेरे घर के अंदर है, आपके घर के अंदर है, आपके काम पर आपके साथ है, आपकी ड्राइविंग में आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। कौन सी जगह है जहां खुदावन नहीं है? मैं कहां छुपूं? मैं कहां जाऊं जहां पर जाकर मैं बदी करूं खुदा की नजर से ओझल होकर? क्या हम इंसानों को धोखा देते हैं डबल नेशनलिटी लेकर, दोहरी शख्सियत को अपनाकर? खुदा को नहीं धोखा देते, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को धोखा देते हैं। हम अपने दोहरी शख्सियत में खुशी महसूस करते हैं। दो बातें, तंग दरवाजा और खुला दरवाजा, तंग दरवाजा और सुखला दरवाजा। कुशादा रास्ता जो है उस पर बहुत मजा आता है, क्योंकि वो अब्लीस का रास्ता है। खुला रास्ता किसका है? अब्लीस का रास्ता है। दरवाजा तंग है, सुखला रास्ता है, लेकिन वो यीशु का रास्ता है। कौन सा रास्ता है? यीशु का। यीशु की राह में कांटे हैं, कांटों का ताज है, सलीब है, ताने हैं, लानतान है, दुख है, मुसीबतें हैं। और वहां पर हमें भी कह सकता है वो है लेकिन तो जानना कराची से क्रिकेट खेलता हूं उनकी कलाम सुना सकता है, या शायद आपके बारे में कहें पादरी यार वो क्या कितों आया इतना वो वर्गलाने वाला है, वो धोखेबाज है, वो चालाक है, वो लोगों को दूर करने के लिए बहुत सारी बातें जो है वो हमारे अंदर जो डालता है। लेकिन मसीह शुक्र रास्ते पर चलने से हम बरकत पाते हैं, हम बरकत पाते हैं, क्योंकि वो रास्ता हलाकत पर नहीं जाता, वो खुदा की बादशाह का रास्ता है। और हम खुदा की बादशाह में जाते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ चल रहा है वो हमारे राह के कांटे जो है वो खुद उठाता हुआ जाता है। और अगर मैं गिर जाऊं, शागिर्द जो यीशु के पास क्या कहता है कि यीशु को मुझे पूरे के पूरे को नहला दे। यीशु कहता है तुझे अब नहलाने की जरूरत नहीं है, तुझे अब पांव धोने की जरूरत है, क्योंकि तेरे पांव जो है शायद गंदगी में जाते हैं, तुझे अब सिर्फ ये करने की जरूरत है। तू इकरार कर चुका है, तौबा कर चुका है, तुझे अब सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। ये रास्ता बेशक सुकड़ा है, ये रास्ता बेशक कठिन है, लेकिन राहत इसमें है, इत्मीनान इसमें है, तसल्ली इसमें है, हमेशा की जिंदगी इसमें है। आगे चलकर आप देखते हैं इस हवाला में कि फिर वो कहते हैं कि दो दरख्त हैं। क्या है? दो दरख्त हैं। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं देता और बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं देता। अब सब ने कलाम मुकद्दस में से ये हवाला जरूर सुना होगा, जहाँ पर बागवान जो वो अपने खेत में आता है और वहाँ पर आकर एक दरख्त को देखता है, कहता भाई इसके अंदर फल क्यों नहीं आया? मालिक भागा आता है, क्योंकि वो कहता है कि इसको काट डाल, इसको क्या कर काट डाल, इसको जगह घेरी हुई है, नुकसान दे रहा है, बढ़ता चला जा रहा है लेकिन फल कोई भी नहीं, बढ़ता चला जा रहा है और फल कोई भी नहीं। इसकी जगह जो है अब खत्म करो, इसको काटो, फेंक दो, जलाओ इसको। मालिक जिसने बड़ी मेहनत की है, मालिक कहता है कि मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, मैंने खाद डाली है, मैंने पानी देता हूँ इसको, मैं इसकी रखवाली करता हूँ। कहता है कि नहीं, एक साल और दे, एक साल 2015 मिला, क्या मिला हमें? 2014 तक मालिक के सबब से हम बचते रहे, मालिक के सबब से हम बचते रहे। वो फिर हमें खाद जो खुदा का कलाम है, जो जिंदगी है, वो फिर हमें देता है। इसलिए तो आज हम 2015 के
हम ये नहीं कह सकते कि मैं जाकर तो वहां खड़ा हो जाऊं, माल्टे के दरख्त पर कहूं मुझे आम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आम चाहिए। वो आम नहीं आपको माल्टा देगा। ऊंट कटारों पर खड़े होकर मैं ये नहीं कहूंगा मुझे अंजीर चाहिए। दोहरी शख्सियत और दोहरे म्यार से बचने की जरूरत है। अच्छे दरख्त की और बुरे दरख्त की हमें पहचान होनी चाहिए। हम क्या कहां पर हैं? जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है, अगर वो बुराई की जिंदगी बसर कर रहा है तो उससे बदकिस्मत शख्स दुनिया में नहीं। अब मेरी बात का मतलब समझे? जिनके पास ये जिंदा कलाम है, ये आपके पास भी है, जिनके पास ये जिंदा कलाम है, ये नेविगेशन है, ये नेविगेशन है और ये रास्ता बताता है खुदा की बादशाह पे जाने का। कहां का ये रास्ता बताता है? खुदा की बादशाह पे जाने का। लेकिन याद रखें कि जो लोग नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गलत हो जाए तो वो फिर आपको घुमाकर दोबारा उसी ट्रैक पर ले आता है। हम क्यों नहीं आते? इस जबरदस्त किस्म के नेविगेशन के सबब से जो कलाम मुझे ये बार बार देता है, दोहरी शख्सियतों के सबब से इस कलाम का हम मजाक उड़ाते हैं। इस कलाम की हमने धज्जियां जो है बखेर दी है, क्योंकि हम बुरे दरख्त से अच्छा फल तोड़ने की कोशिश करते हैं। बुरा दरख्त कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये कलाम के अल्फाज है। ये कलाम कहता है कि अच्छा दरख्त है वो सिर्फ अच्छा फल देगा। पहचान करने की जरूरत है। खुदावंद मेरे दिल की आंखें रोशन कर दे, मेरे दिल की आंखें रोशन। मैं पिछले दिनों मेरा एक और भी काम है, बहुत सारे काम करने के काम और भी है कि मैं रेडियो मिनिस्ट्री भी करता हूँ जो सुपर नौरीन है उसके साथ मिलकर। और जिस दिन मैं रेडियो मिनिस्ट्री के लिए जाता हूँ मुझे तकरीबन 2.5 घंटे जो उसके पास जाने के लगते हैं। फिर वहाँ पर जाकर यीशु मसीह के मौजज़ात की बात करते हैं। और ये रेडियो जो है ये यहाँ पर नहीं सुना जाता, ये सिर्फ एशिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर जो सुना जाता है। और हम सिर्फ यीशु मसीह के मौजज़ात जो हैं उनका प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ पर एक मौजज़ा है जहाँ पर वो कहता है कि यीशु मसीह के पास आकर कहता है मेरे कान जो है बंद है, मैं सुन नहीं सकता। और यीशु उसके कानों में उंगलियां डाल रहा है और उसकी जुबान को अपने थूक के साथ छूता है, उसका हकलापन चला जाता है और उसके कान जो खुल जाते हैं। क्या हमने यीशु की आवाज सुनी है? अगर नहीं सुनी तो कान बंद है। अगर नहीं सुनी यीशु की आवाज तो कान क्या है? बंद है। बेशक मैं सुन रहा हूं, मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन अमली तौर पर अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाने के लिए वो खुदा की आवाज पर यकीन करता है, वो उसको सुन लेता है। और इब्लीस का काम है कि खुदा की आवाज को दबाता है। हम कहते हैं कि पागलियां का काम नहीं है, उन्होंने अपना काम पूरा करना है, उन्होंने पूरा करके कहना लाता है नारों चीज का मिलना चाहिए और बस आता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर खुदा की बादशाह में जाना है, अगर जिंदगी पानी है, अगर जिंदगी लेनी है तो यीशु के कदमों में आने की जरूरत है और अपना कान जो है उसको खुला रखने की जरूरत है ताकि मैं अपने कानों को सुनूं। क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़े जा सकते हैं? क्या झाड़ियों से हम अंगूर हासिल कर सकते हैं? नहीं, वो कांटे हैं। झाड़ियों में क्या है? कांटे हैं। मेरा खुदावंद, आपका खुदावंद, हमारा यीशु, हमारा साझा यीशु जिससे हमें जिंदगी दी है, कहता है मैं पूरा करने के लिए आया। मैं क्या करने आया? पूरा करने। मैं किसी चीज को मनसूख करने नहीं आया, पूरा करने आया। और अगर वो पूरा करने आया है, शरीयत को पूरा करने के लिए आया है, तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकता ये पुराना इस्लाम कहता है और ये नया इस्लाम कहता है। पुराना और नया जब तक ये जुड़े
तक हम एक नहीं हो सकते। ये हमें एक करता है, ये हमें खुदा की बादशाहत के बारे में बताता है कि किस रास्ते पर चलना है। क्या हम नूह के दौर के लोग हैं? नूह के दौर के लोगों को क्या हाल हुआ था? 120 साल तक वो मनादी करता रहा, लेकिन लोगों ने कोई भी कलाम को कबूल नहीं किया। बेचारा दरख्त काट रहा है, लकड़ियां लगा रहा है, चिप बना रहा है, पागल हो गया। ना पानी है तो ना कुछ और, पागल हो गया। आज खुदा के कलाम का प्रचार करने वालों के लिए लोग यही कहते हैं, या करवाया जाता है कि इन्होंने की हमें पता नहीं की करते हैं, इन्होंने तो समझ ही नहीं। लेकिन याद रखें कि कलाम सच्चा है, और मैं कहता हूँ पैदाइश से लेकर मलाकी और फिर मत्ती से लेकर मुकाशा, ये सारा एक कलाम है। और कलाम की एक एक बात पर हमें अपना सर झुकाने की जरूरत है। और अगर हम सर नहीं झुकाते तो हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी भी काम के नहीं हैं। ये नेविगेशन कभी भी मुझे सही जगह पर नहीं पहुंचाएगा अगर मैं अपना गलत रवैया ही अपनाए रखूंगा। ये उस वक्त मुझे बादशाह में लेकर जाएगा जब मैं इसका फर्माबरदार रहूंगा। जब तक मैं इसका फर्माबरदार हूं, ये मुझे सही राह पर लेकर जाएगा। और अगर, क्योंकि इब्लीस इस कलाम को जानता है, मुझसे आप सबसे ज्यादा इब्लीस कलाम को जानता है। वो आपके पास आकर कुछ भी कह सकता, जैसे ना यीशु के पास क्या तो छलांग लगा दे, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तू एप्पल के फिंगर से क्या कर दे, छलांग लगा दे, तुझे क्या होगा? तुझे तो फरिश्ते अपने हाथों पर उठा देंगे। तुम तो दुआ मांग लोगे, तुम्हें क्या होगा? तो आगे चल जाए जाके तौबा कर ले, इकरार कर ले, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर ले, कुछ नहीं होता। बच्चे किस तरह पालेगा, जिंदगी किस तरह गुजरेगी? जिनका तवक्कुल खुदा पर है, वो उनके लिए उस जगह से जहां से कुछ नहीं हो सकता, वो वहां पर भी पानी की नदियां चमकाएंगे। वहां पर भी वो पानी की नदियां। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो वाहिद है और सच्चा है, उस जैसा ना हुआ है और ना कोई होगा। वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। हम उस खुदा के लोग हैं जो हमें अपनी जान देकर, हमारा फिदिया देकर हमें बुलाता है। किसी ने किसी का फिदिया नहीं दिया। उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं। मेरा खुदा बोलता भी है और सुनता भी है, हालेलुया, और वो देता भी है। अच्छा दरख्त हमेशा अच्छा फल देता है। हम मसीह के तरफ हैं, हम मसीह के लोग हैं। मैं मसीह का बेटा हूँ, आप मसीह के बेटे हो। आपके अंदर से जितने यहाँ पर बैठे हैं, हमारे अंदर से अच्छाई नजर आना चाहिए, हमारे अंदर से यीशु नजर आना चाहिए, क्योंकि अच्छाई यीशु है। अच्छाई कौन है? यीशु। और बुराई इब्लीस। कलाम मुकद्दस के मुताबिक, मैं कलाम मुकद्दस की बात करूंगा क्योंकि कलाम मुकद्दस जब वो मोहब्बत का दर्स देता है, और इब्लीस ने हमसे मसीह का दिया हुआ दर्स जो उसको छीन लिया। अब गौर करें अपनी जिंदगी पर, आज से लेकर अभी तक 4 साल से पहले आपने कितनी मोहब्बत का इजहार किया है इसके साथ, कितनी नफरत है वो बखेरी है मुख्तलिफ तरीकों के साथ, चाहे अपने मतलब के लिए या किसी भी काम के लिए। क्या जिस कलाम के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, इसने हमें सिखाया कि तू नफरत करते? इसने नहीं सिखाया, और ना ये कलाम में है, ये इब्लीस ने बताया। और आपको पता है जो इब्लीस की बातें करता है वो इब्लीस में से है। अगर मैं किसी को कहा तू इब्लीस है, वो पढ़ लेगा, बोलेगा तू बोला है खुदावंद। हाँ, लेकिन दरख्त अपने फलों से पहचानता है। जब बुरे काम कर रहे हैं तो फिर कोई क्या भी देता, फिर बुरी बात नहीं है।
बुरा कर रहे हैं तो कहेगा तो बुरा करने है। यस, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमीन। ये नफरत उसने हमारे बता दी है, उसने हमसे ये मोहब्बत छीन ली है। अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं अपने लालच से, अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं अपने लालच से, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं अपने लालच से। ये लालच, ये नफरत इब्लीस से आती है। इब्लीस को अपनी जिंदगी से दूर करने की जरूरत है। दोहरी शख्सियत नहीं जीना, क्योंकि हम अब समझदार हैं। हम क्या है? समझदार हैं, क्योंकि हमने अपने सारे कामों को तरह करके कलाम को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग हैं तो नहीं आ सकते आज, लेकिन आपको खुदावंद यहाँ पर क्यों लाया है? इसलिए लाया है कि हम आज कलाम की बातों को सुने, उन पर अमल करें और हम में यीशु मसीह वाली अच्छाइयां जमा नजर आए, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है। दावेदार हैं लोग, ये और आगे चले तो फिर दावों का जिक्र आता है। आए खुदावंद देख मैं तेरी कितनी परस्तिश करता हूं। आए खुदावंद देख मैं कितने रोजे रखता हूं। आए खुदावंद देख मैं धैर्य की देता हूं। जरा मेरे पीछे ही कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और जरा अपनी छाती पे कर रहा। यीशु जब नीचे से गुजर रहा है, भीड़ के साथ है, और ऊपर एक शख्स है जिसका नाम ज़कई है। इतने लोग यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो कहता है आए ज़कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि उसके हृदय को यीशु ने देख लिया है, उसके दिल को यीशु जान गया है, क्योंकि वो जान गया कि ये आज इकरार करेगा। और ज़कई जब इकरार करता है कि मैंने अगर किसी का ना हक ले लिया है तो मैं उसको जो गुनाह किया वो वापस करता हूं। इसका मतलब है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, वो दावे जो वो करता था उनका इनकार कर देता है। नबूवतें नहीं की हो गया मेरी अनिया नबूवतां सचियां तेरे झूठे होते हो गया। क्या खुदा झूठ बोलता है? क्या खुदा झूठ बोलता है? कभी नहीं। मैंने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की, मैंने तेरा कलाम नहीं सुना है। ये दावे हैं ना, ये दावे हैं। मैंने सारी उम्र तेरी परस्तिश नहीं की, मैंने सारी उम्र तेरे कलाम को अपनी बगल में नहीं रखा, लेकिन कलाम कहता है कि अव्वल आखिर बजाएंगे। जो सच्चाई से इकरार कर लेगा वो जिंदगी पाएगा। यीशु मैंने तेरे नाम से बहुत मुआशे किए हैं, ये दावा है कि मैंने किए हैं। मैंने शुरू में कहा मार का मशहूरी मेरी करने वाला हुआ है, नाम मेरा हो। क्यों है? मैं किया है, मेरे को हुआ है, मैं क्या आसा क्या हो गया? अब कलाम के कलाम को कहते हैं मेरा कलाम, ये खुदावंद ने दिया है, और जिसने दिया जिसका है उसी का प्रचार, उसी का नाम आना चाहिए, उसी का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए। हमें अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है, जिस तरह यीशु ज़मीनी जिंदगी में अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करता है। क्या मैं और आप, हम आज ये कह सकते हैं कि खुदावंद मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं? जब उसकी मर्जी के लिए हम कदम उठाते हैं तो अगर गड्ढा है नहीं, यीशु हमने छोड़ दे मर्जी को पूरा करना, मैं गुजरूंगा और वो उसको भर देगा, उस खड्डे को भी भर देगा यीशु, क्योंकि उसमें ताकत है, उसमें कुव्वत है। वो मेरे लिए रास्ता जो है उसको हमवार कर देगा। लेकिन अगर मेरे अंदर डर होगा, खौफ होगा, जिस तरह पतरस के अंदर है, तूफान है और यीशु पानी के ऊपर चलता आ रहा है और वो डर जाते हैं, कहते शायद कोई बदबू
और कभी ये हुआ नहीं, कभी उनकी जिंदगी में मछली में थे, पानी में रहने वाले लोग, मछलियां पकड़ने वाले लोग, उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई शख्स जो पानी के ऊपर चलता है वो घबरा गए, डर गए, खौफ से उनकी बुरी हालत है। हम हैं, और पतरस जो बड़ा जज्बाती इंसान है वो कहता है यीशु तू है, मैं भी चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा एक ही और बोला आ, क्या बोला आ, और पतरस ने पांव रखा और चलने लगा। जिवें ਉਹਦੀ अपनी निगाह पानी लगे, कहता पानी तो ਉਹਦੀ डूबा लगा। हमने सिर्फ यीशु को तकना है, बाकी चीजें नहीं देखनी, सिर्फ यीशु की तरफ निगाहें जो लगाए रखनी है। जब हम दुनिया की तरफ देखेंगे तो हम हलाकत की तरफ चले जाएंगे। अगर हम यीशु को देखते हैं तो हम जागते हैं और यीशु में बाजू को थामने की कुव्वत रखता है और बचाने की कुव्वत रखता है। आमीन। उसने पानी की तरफ देखा कि नहीं, पतरस छलांग लगा, पानी तो डूबने लगा। यीशु की मदद कर और यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसको पकड़ा। दावेदार हमें नहीं होना, खुदा की फिक्र करना। दो बातें, एक खुदा की मर्जी को पूरा करना या फिर दावे करना। छाती पीट पीट कर रोया था कि खुदा ने अपना कमजोर इंसान। वो जो शख्स कह रहा था ना दावेदार, वो कहता मैं दही पी देता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। और आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। यीशु के बारे में पूछा सकेगा बड़ी दुनिया का नाम सुना नहीं, असी भी जाने यीशु, असी तो हुक्म पूरा करने माने हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हमें वो सब कुछ करना है जो खुदा हमारा खुदा कहता है। हर कामिल इनाम ऊपर से आता है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है और वो खुदा हमें देगा। आखिरी बात एक कहूंगा, फिर दो का जिक्र है। एक ममार है, इसमें खुदा कहता है घर बनाने वाला एक है। खुदा ने कहा है कि आपका घर कहाँ पर होना चाहिए, आपका घर चट्टान के ऊपर होना चाहिए। आपका घर एक घर रेत पर बनाया गया है और एक चट्टान पर। जो चट्टान पर बना है वो मजबूत है, आंधियां आई, तूफान आए, उसको कोई जरा नहीं पहुंचा। लेकिन जो रेत पर बना है वो पहले ही झटके में। आज आप अपने घर को यीशु पर बनाएं। यीशु कहता है कि मैं मजबूत चट्टान हूं। मैं क्या हूं? मजबूत चट्टान। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हम दूरी शख्सियत को करना चाहिए। दूरी शख्सियत हमेशा मार खाएगी। हम सिर्फ यीशु के होकर जिए। आपकी मेरी हमारी जिंदगी से यीशु का जलाल साहिब हो, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पैसे आज 2015 में खुदा चाहता है, खुदा फरमाता है, कहता है कि तू क्या चाहता है? क्या तू दोहरी शख्सियत चाहता है या तू मेरा होकर जीना चाहता है? क्या तू सुखले रास्ते पर चलना चाहता है या कश्याप रास्ते पर चलना चाहता है? क्या तू अच्छा दरख्त बनना चाहता है या बुरा दरख्त बनना चाहता है? क्या तू चट्टान पर घर बनाना चाहता है या रेत पर घर बनाना चाहता है? क्या तू दावेदार होना चाहता है? आज लोग दावेदार होने के लिए दुआएं करते हैं कि खुदा मैंने पाक करो दे, मैं नबूता करा, मैं मुझसे करा, तो लोग क्या है बाजी बड़े बाबा बड़े कमाल है, बड़े कमाल है। मैं क्या चाहता हूँ? खुदा का सवाल है कि तू क्या चाहता है? मैं तेरे लिए करूँगा। क्या मैं जिंदगी देखना चाहता हूँ या जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ? अगर मैं जिंदगी में जाना चाहता हूँ तो मुझे यीशु के साथ चलने की जरूरत है। और यीशु के साथ चलने के लिए हमें अक्ल और ताकत और कुव्वत की जरूरत है। सुन, खुदा हमारा खुदा यूं फरमाता है कि अपने सारे
जीने की जरूरत है, उसके साथ जंग करने की जरूरत है। उन्हें नहीं लगे जंग जिन्ना दी लड़ाई असि उछल चल के गाँव में जंग दी, और हम कहते हैं कि चलो उन्होंने जंग करेगा। ये तलवार की जंग नहीं है, ये वाली जंग नहीं है, ये कलाम की जंग है। हमें बचना है, बचना है। कलाम जिंदगी में होगा तो हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो अगला है उसको ये कलाम पूरा रखा हुआ है। इसके लिए उसके साथ जंग करने के लिए मुझे इस कलाम को अपने सीने पे बख्तर बंद पर लगाना है। ऐसे नहीं कहने लगाना, ऐसा नहीं उस चौक के पास हो जाएगा। ये अगर अंदर होगा तो उसकी जरूरत नहीं कि आप कुछ भी कुछ भी दूरी शख्सियत में से निकलने की जरूरत है। मैं मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक कलाम के एक एक हुर्फ को मानने की जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरी ये दुआ है, मुझे खुदा ने ये तोड़ा दे रखा है कि मैं खुदा की कलीसिया में जाऊं, काम करूं। और अभी इन दिनों जो खुदा ने 2015 के अंदर बल्कि 2014 के एंड में मुझे खुदा में से मुखातिब खुदा ने कहा कि उर्दू चर्च की उर्दू कलीसियाओं के लिए है ये साजिश शुरू होगा कि वो यूनाइटेड हो जाएं, वो एक हो जाएं, एक ही झंडे के नीचे जो सब चीजों को तरक कर दें। हमारी फिक्रें जो है उनसे हम आजाद हो जाएं। जो हमारी परेशानियां, जो टेंशन है बच्चों की या घरों की या जो माँ बाप की, जो पाकिस्तान में या शायद दुनिया के और वाले मुल्कों में है, हम एक होकर यूरोप में अपनी जिंदगी जो है वो जी सके। हम खुदा की कुर्बत में आ जाएं और एक होकर हम खिदमत करें, एक होकर हम खुदा की बादशाह में जाएं। इस यूरोप में मसीह कमजोर ना पड़ने पाए। और आप खुदावन के सफीर और खुदावन आपको स्पेन में लेकर आए, खुदावन हमें यूरोप में लेकर आए। इसलिए ना कि राती सुबह काम की तरह राती सोते सुबह उठे फिर काम करोगे। खुदावन ने इसे लाया कि ये लोग सो गए हैं और इनको जगाने की जरूरत है, इनको जगाने की जरूरत है। सैमुअल 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 3 दफा आवाज देता है, भागा भागा इनके पास जाता है। हमें खुदावन ने कितनी आवाजें दी हैं, क्या हम कह चुके हैं खुदावन फरमा तू क्या चाहता है, तेरा बंदा सुनता है, हम सुनते ही नहीं है। अपने कान खोलने की जरूरत है। हमें यीशु की आवाज आती है अब लीज जाती है बिस्तरे जब निकल के बात आ जाएंगे काम करते कि हम सिर्फ उसकी आवाज को सुनने वाले हैं। तीसरी दफा जाता है, चौथी दफा कहता अब भाई तो कहना कि तेरा बंदा सुनता है। और जब वो कहता है तेरा बंदा सुनता है और जब वो आवाज आती है सैमुअल, तो सैमुअल अभी बच्चा है, गौर करें कि अभी बच्चा है, वो उठकर फिर भागा नहीं है, बड़े सुकून से बिस्तर पर लेटा हुआ इत्मीनान से है और कहता है फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदावन की आवाज को सुनने के लिए मेरी जिंदगी में इत्मीनान, तसल्ली और सुकून होना चाहिए। असी उदो खुदा की आवाज सुने तो उतो तक पा जाने ना मुसीबत में ना फिर असी कहने हाय रोज रखने की जरूरत है, हाय दुआ करने की जरूरत है, आओ पाली सब दुआ करो, आओ जी भाई दुआ करो। उदो से नसने जब हम सुकून में होते हैं उस वक्त बोल रहा है बेटा सुन, बेटा सुन, नहीं सुनते। सारा कलाम जो है वो इन्हीं बातों से भरा हुआ है। जरूरत है कि हम अब खुदा की आवाज को सुने और अपनी जिंदगी में सुने। आमीन।